Good evening, everyone. First of all, I would like to wish you happy Ganesh Puja to everyone. And today we are meeting to have a discussion on the topic, the idea of Atmanirbharta, challenges and opportunities, and also the book release of Atmanirbharta, revisiting the idea and practices. On this occasion, we have Sri Sunil Ambekar ji, who will be the chief speaker of the program, chief guest and chief speaker of the program. He is with us, and also the session would be chaired by Professor Jagdish Kumar ji. He is vice chancellor of Jawaharlal Nehru University and professor in IIT Delhi. And without further delay, I would like to request Dr. Vandana Mishra ji to tell us more about the book. Dr. Vandana Mishra. Thank you, Dr. Swadesh. Thank you, Professor M. Jagdish Kumar, Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, for accepting to grace this occasion. And thank you very much, respected Shri Sunil Ambekar ji, for speaking on the subject of self-reliance. So, as we all know that every year, every month, every day, number of books are launched, number of books are released, and they come in libraries and people read it. But when we were planning of launching this book, we had two basic ideas in our mind, or two reasons for which we wanted to launch this book. Actually, release this book, and that too on an online platform, because we wanted more and more people to join in this discussion. The first reason is the idea of Atmanirbharta, or the idea of self-reliance in itself. The concept of self-reliance, which has been relevant in India from pre-independence days and is still relevant and will continue to remain so for a long time. And this is a concept which is not only important for India, but for any nation at a particular time. And the way it has been now very intricately weaved with the larger connotation of national pride and self-confidence, it makes it more relevant for the present time to discuss this idea on a platform where we can have as many as participation as possible. And on 12th of May, to be very precise, on 12th of May 2020, when our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji announced the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, and that too in the midst of global pandemic, he actually was trying to touch that gentle chord of self-confidence and pride in what we all can do on our own, what we all can achieve as an individual, because it is a reflection of individuals' talent, individuals' self-confidence that is reflected in the society, and then it is reflected in the nation also. So both of the two speakers will also be talking on the same idea. So I'll leave this idea of Atmanirbharta here only. And the second reason was the process of making of this book, which was somewhat a different exercise that we did. I'm sure many of you have heard of Academics for Nation, a very budding think tank that has come up. That think tank planned and decided to organize an online internship during those days when everybody was troubled with Corona. That was in May, June 2020. They gave advertisement on online platforms. Many research scholars, many MA, MPhil students, PhD scholars, they applied for that internship. The internship went on for 2 months, May and June, and the idea was only to guide them, to do that hand holding of how to do an academic writing. They were asked to write a book review. They were asked to write a 800 1000 word article which can be published in an online platform, and finally they were asked to submit a research paper. And that was the same time, that is in the month of May, that Prime Minister Narendra Modi gave this call of Atmanirbhar, to make India Atmanirbhar. And so we decided that the major research article that those research scholars will present will be on the basis of self-reliance, will be the title of that research paper will be Atmanirbharta. And that is how so many research scholars, they wrote a research paper. All research scholars were given one mentor, and all these mentors were professors, associate professor and assistant professors from different universities all around India. And together they contributed
contributed chapters in the making of this book. So this book is not only in itself an example of many people, like young students who might have got the first chance to get themselves published somewhere, along with mentors who are already in this day-to-day activity of publishing together, to bring them together and to write and to think and to travel the same path of understanding what self-reliance or what Atmanirbharta means for all of us. So these were the two main regions that we planned to do this launch. One was the concept of Atmanirbharta, and second was the entire process of bringing out this book, the way we came to this stage, and that is after about more than a year, because of all the research scholars being new and just learning how to do a research work, how to write, how to do academic writing. So it took a bit long also, but finally we have a book in our hand, which for which many of the research scholars are proud of. So thank you, Dr. Swadesh. Thank you, Vandaji. I would like to request our chief guest, our chairperson, and all the participants, those who were part of this project, and that to formally release the book if they have the copy with themselves. Right. So let me release the book along with the chief guest, Shri Sunil Ambekar ji. Right. So good. Congratulations. थैंक यू सर. मित्रों, जैसा कि अभी सुनील जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और हम सभी लोग वैसे तो सुनील जी से परिचित हैं, सभी लोग लंबे समय से, हमें से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं. फिर भी एक छोटा सा परिचय कि सुनील जी पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र और युवा आंदोलन से जुड़े रहे, और आप संघ के अभी प्रचारक हैं, और वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं. मैं आग्रह करूंगा श्री सुनील अंबेकर जी से कि वो अपनी बात रखें. विद द परमिशन ऑफ चेयर, मैं आग्रह करूंगा सुनील जी से कि अपनी बात रखें. थैंक यू. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक अच्छी किताब और समय पर, मतलब टाइमली लेकर आने के लिए, और सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं. ये आत्मनिर्भरता जो शब्द है, ये शब्द जो है बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है. मुझे लगता है कि अपने सभी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है. मैं ईमानदारी से कहूँ तो पूरी पुस्तक नहीं पढ़ पाया, लेकिन कुछ चैप्टर्स मैंने जरूर उसके देखे हैं. लेकिन जितनी भी मेरी चर्चा हुई, जितनी बात मैं समझा, तो अच्छा है. मुझे बताया गया कोई भी आर्टिकल कहीं अच्छा एक एफर्ट हुआ, और जिसमें काफी सारी मेंटरिंग हुई. स्टूडेंट्स ने भी इसमें एफर्ट लिया, टीचर्स ने भी लिया, और मुझे लगता है कि द आउटकम इज दिस बुक. वेरी गुड. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल. आत्मनिर्भरता, मैं ऐसे मानता हूं कि ये हमारे देश के लाखों लोगों का जो एस्पिरेशन है, उसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है. ये सामान्य लोगों के मन में एक बहुत पुरानी, मतलब ये आकांक्षा थी, एक इच्छा सबके मन में थी कि जब देश का आजादी का आंदोलन भी चल रहा, आवाज आ रही ना, कैन यू हियर? हाँ, जो आजादी का आंदोलन चल रहा था उस समय ही, ये हम अगर आजादी के आंदोलन को देखेंगे तो वो केवल ब्रिटिशों से आजादी के लिए नहीं था. तो उस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे प्रयास चल रहे थे जो भारत को हर फील्ड में आगे लेके जाना चाहते थे कि भाई हम आपके ब्रिटिशों के ऊपर
डिपेंड नहीं है. वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द कैपेबिलिटी एंड वी कैन. हम बहुत प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, हम साथ में आकर नई चीजों को स्वयं ही खड़े कर सकते हैं. ये आत्मविश्वास देश की पूरी जनता में जागरूक हो जाए, वैसे प्रयास हो जाए, ये मुझे लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन में हर हमारे जो लोग थे वो सभी इसी का प्रयास कर रहे थे. और ये हम लोगों को हर फील्ड में देखने को मिलता है. मैं जब देखता हूं कि 1920 के पहले लोग अपने विज्ञान में लिख रहे, किताबें लिख रहे, रिसर्च कर रहे, हिंदू केमिस्ट्री लिख रहे, मतलब वो एक्सप्रेस कर रहे थे. मैं भी आते आते पीसी रे और मतलब किस तरीके से ये लोग सब इस बारे में लगे थे कि हमारे देश को किसी भी तरीके से एक ऐसा हम देश बनाए कि हम अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी टैलेंट से आगे बढ़े. एक जबरदस्त अपील था मतलब उसका. उस समय नेशनल एजुकेशन के लिए प्रयास चल रहा था, एक लंबा चौड़ा. देश के हर कोने में लोग अपनी शिक्षा के अपने पद्धति से बनाने का प्रयास कर रहे थे. मैं गोदरेज की जीवनी पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि किस तरीके से उनके सामने चैलेंज था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने बिजनेस का देश में उपयोग करेंगे या कहीं जाकर किसी के इन्वेस्टमेंट से दूसरा बिजनेस करके उनके ऊपर ही उनके सर्कल या उनके साइकिल का एक पार्ट बन जाएंगे. उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल कम आउट एंड वी विल प्रिपेयर, वी विल हैव आवर ओन साइकिल सर्कल. एक स्वाभिमान से वो खड़े हुए हैं. और मुझे तो दादा साहब फाल्के की कहानी तो मैं हमेशा याद करता हूँ कि जिनके नाम से फिल्म फेयर का अवार्ड चलता है बहुत बड़ा. उनकी कहानी तो है कि जब उन्होंने अपने परिवार के साथ जाके फिल्म देखी और समझ में आया, नई टेक्नोलॉजी आई थी और देखा कि कैसे जीसस के बाद मिशनरी लोग अपनी फिल्म चला रहे हैं, कैसे वो लोग अपनी कल्चर को, अपने वहाँ के बातों को दिखा रहे हैं. उनको लगा कि ये गलत है, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो गए, उन्होंने सीखा, उनकी आंखें भी बहुत उस पर असर निगेटिव हुआ, फिर भी वो आए. उनको लोगों ने वहाँ ऑफर दिया कि आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप यहीं रहो, क्योंकि उन दिनों हमारे यहाँ तो कुछ था नहीं, वहीं सारा फिल्में बनती थी. उन्होंने कहा नहीं कि मैं तो ये टेक्नोलॉजी इसी के लिए सीखा हूँ ताकि मेरे देश के लिए उसके अनुसार मैं फिल्में बना सकूँ. वापस आए. आज हम देखते हैं कि उस समय से चालू हुआ प्रयास आज इतना बड़ा एक हमारा एंटरटेनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक एरिया बन गया. तो ऐसे प्रयासों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमको आजादी के आंदोलन में दिखती है. स्वाभाविक रूप से ये जो स्पिरिट था हमारे आजादी के आंदोलन का, वो ये स्पिरिट था, आत्मनिर्भरता का स्पिरिट था. और स्वराज्य का था, स्वदेशी का था, स्वाधीनता का था, हर क्षेत्र में था. स्वाभाविक रूप से हम लोग इस दृष्टि से कुछ प्रयास करें, और कई सारे प्रयास भी हुए. पिछले 75 वर्षों में भी प्रयास हुए. इसकी समीक्षा हो सकती है कि और ज्यादा होने चाहिए थे, कैसे होने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है वो एक स्वतंत्र विषय होगा उसके राजनीतिक सरकारों के विश्लेषण का. लेकिन अगर मैं आपके पुस्तक के टॉपिक की तरफ सीधा आऊं तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छी एंटरप्राइजिंग कैपेसिटी है लोगों की. अभी मुझे कई लोग मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे बाधाएं खुल रही है, जगह जगहों पर लोग अपने अपने तरीके से एंटरप्राइजिंग शुरू कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं. अब विषय ये आता है कि जो एक बहुत बड़ा दायित्व हमारे इंटेलेक्चुअल जो क्लास है उसके पास आता है कि जब लोगों के अंदर एक एक्सप्रेशन, एक महत्वाकांक्षा है, एक एस्पिरेशन है, सरकार उस दृष्टि से पॉलिसी लेवल पर बहुत सारे चेंजेस करने के लिए प्रयास कर रही.
बहुत सारे एक माहौल वैसा बना हुआ है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। एक तो सरकारों के सामने पॉलिटिकली तो बहुत सारा हल्ला गुल्ला चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सॉल्यूशन के रूप में कि कौन सी पॉलिसी कैसी बननी चाहिए और उस पॉलिसी में क्या चेंजेस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके डिटेल्स क्या होंगे, हर पॉलिसी का प्लस एंड माइनस एनालिसिस, पोटेंशियल क्या है हमारा किस फील्ड में। और एक फील्ड, कई बार क्या होता है हमारे पॉलिसी मेकर्स आइसोलेशन में पॉलिसीज के बारे में बोलते हैं। मतलब कोई समझो हमारा एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में बोल रहा है तो वो अपना उसी पर बोलेगा, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर बोल रहा है तो वो उसी पर बोलेगा, कोई हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बोलना है तो उसी पर बोलेगा। उससे क्या हो रहा है कि ये चीजें जो आइसोलेशन में पॉलिसी चली जाती है तो वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से को इंटीग्रेट नहीं करती है। उसके कारण जितना सक्सेस रेट हमारा होना चाहिए या आम लोगों को उसमें जो एक्चुअली काम करने वाला है, जो एंटरप्राइजिंग करने वाला है या जो एंड यूजर उसका है, उस जो भी सारी चीजें होगी उसका, वो इस दृष्टि से थोड़ा सा मतलब एक तरीके से डिवाइड हो जाता है। लेकिन काम तो ऐसा नहीं होता है, काम तो सारा मिल के होता है। तो मुझे लगता है कि आजकल यूनिवर्सिटीज में हम लोग इंटीग्रेटेड स्टडीज तो कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको हम लोग उस तरीके से स्टडी करके उसमें जो उसका सिनर्जी बनना चाहिए या उसके साथ जो एक म्यूचुअल मतलब कोऑपरेशन का जो सिचुएशन बनना चाहिए, उस दृष्टि से मुझे लगता है बहुत डिटेल में काम करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे सजेशंस की जरूरत है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सजेशंस केवल एकेडमिक होने से नहीं चलेगा, सजेशन शुड रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल सोल्यूशन। क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी, एनी गवर्नमेंट कम्स विद द पॉलिसी व्हेन इट इज अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, द पॉलिटिकल सॉल्यूशन। तो हम लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल किसी भी चीज को हम थ्योराइज करें, जरूर करें, थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, बट अल्टीमेटली अगर हम लोग रियल टाइम में अगर इंटरवेंशन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आज समय की जरूरत है कि हम एक अच्छा खासा पॉलिटिकल सॉल्यूशंस प्रेजेंट करें, उस फॉर्मेट में दें, ताकि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो आइदर पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एग्जीक्यूटिव लीडरशिप हो, वो सारे लोग जल्दी से और बिल्कुल सही तरीके से विद फुल कॉन्फिडेंस निर्णय ले सकते हैं। ये आज का समय बहुत अच्छा है कि जिस समय इसके लिए स्कोप है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों का जो अलग अलग जो विधाओं के जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग तरीके से, वो सब लोगों को इसमें मिलकर इसके बारे में सॉल्यूशंस आने चाहिए। दूसरा क्या है कि हम लोग एक एरिया का कोई सजेशन देते हैं तो हमारा देश इतना बड़ा है और इतने प्रकार के अलग अलग तरीके की सिचुएशन है कि हर एक जगह के लिए बहुत प्रकार के अलग अलग सॉल्यूशंस जो दिखने में लोगों को मतलब जिनका देश छोटा सा है वो शायद डर जाएंगे कि अरे इतने सॉल्यूशंस एक साथ ऑपरेट कैसे होंगे। लेकिन हमारा देश तो है ही इतना बड़ा ना, हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एक सॉल्यूशन से देश प्रगति करेगा ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक प्रिंसिपली एक चीज रहेगी, लेकिन हम अगर उसके मल्टीपल प्रकार के फॉर्मेट्स अगर हम लोग एक साथ सामने रखते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी देश को ज्यादा जरूरत है, तब हम आ सकते हैं। नहीं तो कई बार प्रोग्राम चलते हैं, स्किल प्रोग्राम, एक स्किल सेट बना दिया वही देश में पढ़ा दिया तो नहीं काम होता है। तो बहुत सारे उसमें मतलब फॉर्मेट्स बहुत सारे बनाने पड़ेंगे और इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए। इसलिए आपने आज जो एक प्रयास किया है कुछ लोगों को जोड़कर, ये प्रयास मुझे लगता है कि मैं ये मानता हूं कि हर जगह हर यूनिवर्सिटी के लेवल पर होने की जरूरत है, ताकि यूनिवर्सिटीज एक एकेडमिक लीडरशिप केवल नहीं है, तो ये पूरी डेवलपमेंट का हमारा इंजन है जो डायरेक्शन देगा, जो उसके पॉलिसी इंटरवेंशन भी करेगा और इसके लिए लोगों को एजुकेट भी करेगा ताकि इस इंजन के गाड़ी में कैसे चढ़े और इसका लाभ कैसे ले। तो मल्टीपल ड्यूटीज मुझे लगता है और इस दृष्टि से एक अच्छा खासा काम होने की आज देश को जरूरत है।
दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जब होता है तो बहुत सारे लोग अपने अपने सॉल्यूशंस लेकर भी आते हैं। तो हम लोगों के लिए एक काम ये भी है कि जो कई सारे लोग अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, आजकल तो हमारा ओपन एरिया है पूरा, तो हमारे पास ऐसा एक मैकेनिज्म भी हमें बनाने की जरूरत है कि जिसमें हम फास्ट लेवल पर जल्दी से जो जितने भी लोग अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अपने अपने अनुभवों के आधार पर सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, उनको जजमेंट करने का तरीका भी अगर हम जल्दी करते हैं। अभी हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये भी है कि सॉल्यूशंस होते हैं लेकिन उनका नंबर, मतलब उनको सही है कि गलत है, इम्प्लीमेंटेशन करने लायक है कि नहीं है, इसको जज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मुझे लगता है एक दूसरा एंगल होगा कि जिस पर काम की जरूरत है। और तीसरा, मुझे यहाँ कुछ अपने भाषाओं के प्राध्यापक भी दिख रहे हैं। हमारे ये आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भाषा का भी है, क्योंकि हमारा आत्मनिर्भरता का अभी तक का जो मॉडल चला वो मॉडल अंग्रेजी में ही ज्यादा चला, और उस गाड़ी में कई लोग सवार ही नहीं हो पाए, बहुत सारे लोग नीचे ही रह गए। तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी को भी बहुत सारी भाषाओं के डिब्बे लिखने की जरूरत है। अगर वो उस दृष्टि से ये बातें सामने आएगी बहुत इजी फॉर्मेट में, तो बहुत सारे लोग हैं कि जो बहुत जल्दी से इसमें आगे आ सकते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मैथमेटिकली अगर मैं कैलकुलेट करूँ और किसी एकेडमिक के साथ बैठ के, तब तो मुझे लगता है कि हमारी सारी आत्मनिर्भरता होने में कई हजार वर्ष लग जाएंगे। लेकिन जब मैं लोगों के पास जाता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, बहुत इंथुजियाज्म है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, और इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई मिनिस्ट्री में स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कई सारे हैं, हर जगह से शुरू हो रहा है, हर जगह से लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैं बहुत एक पॉजिटिव चीज देखता हूँ। अब बस इन दो पॉइंट्स को जोड़ने का काम मुझे लगता है थोड़ा कम हो रहा है, उसके लिए ही ये ऐसे कई प्रयास की जरूरत है। तो मुझे प्रैक्टिकली ये दो तीन बातें लगती है कि जिन पर ज्यादा काम होना चाहिए, और जितना इन बातों पर काम होगा तो अच्छा रहेगा। बाकी अभी बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसको कुछ लोग मुझे लगता है कि दो पार्ट में, बाइनरीज में देखते हैं कि जैसे अर्बन है, रूरल है। कोई कहते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजिकल है, ये नॉन टेक्नोलॉजिकल है, मतलब हर चीज को बाइनरीज में देखते हैं। मुझे लगता है कि हमारा ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी सभी चीजें इंटरडिपेंडेंस है और एक दूसरे पर निर्भर है। हमारी आजकल जो कई सारी चीजें होती है वो अगर उस तरीके से अगर हम लोग ये कनेक्टिविटी बनती है और हमारे सॉल्यूशंस अगर उस तरीके से जाते हैं, क्योंकि देखिए एक जगह कहीं प्रोडक्ट बनेगा, कहीं कोई चीजें बनेगी, कहीं कोई चीजें कहाँ से जाएगी, तो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन भी हम बचा पाएंगे। अभी आजकल तो हमारे देश में, मैं तो देश भर घूमता हूँ, पूछता हूँ ये गाड़ी कहाँ से जा रही, तो बोलते यहाँ ये गाड़ी यहाँ से ये माल लेके वहां जा रही। फिर पूछता हूँ ये उल्टी गाड़ी कहाँ से आ रही, तो बोलते वो उस गाड़ी में बनने के लिए वहां से माल लेके वहां जा रही है फैक्ट्री के लिए। फिर वो गाड़ी और कहाँ जा रही, तो वो मतलब ये इतना मल्टीपल है हमारा कि एक चीज कहाँ होती है, कहाँ ले जाते, कहाँ बनाते, फिर कहाँ पहुंचाते हैं, फिर कहाँ से कहाँ जाती। तो और मैं ट्रेन में पूछता हूँ लोगों को कहाँ से क्यों कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे कई लोगों का इतना सॉलिड रीजन नहीं होता कि जिस चीज के लिए वो वहां जा रहे हैं वो चीज शायद उनके यहाँ भी हो सकती थी, जिसके लिए उनको मतलब वहां जाने की शायद जरूरत नहीं थी। तो हम इन चीजों को भी कम कर सकते हैं, और इसलिए हमारा मॉडल पूरा ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब देश पूरा आत्मनिर्भर होगा और कौन से जिले में किसी कोने में कहाँ बैठेगी कोई चीज बनेगी, हम देश भर में पहुंचा देंगे। तो मुझे लगता है ये मॉडल बहुत कॉस्टली है, और इसमें कॉस्टली भी है, फिर इसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत करना पड़ता है, तो उससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है। और फिर उसको सस्टेन करने के लिए हम इन्वायरमेंट से भी खेलते हैं, फिर उसकी जो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो अगर हम लोग इसको उस मॉडल पर भी आत्मनिर्भरता की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लगता है। तो कई सारे एंगल्स हैं। मेरी जो बात हुई थी स्वदेश से, तो स्वदेश जी ने कहा था कि कुछ बात मैं रखूं, कुछ लोग अपनी बात भी रखेंगे थोड़ा चर्चा के लिए।
यहीं पर रुका हूँ और जैसा विषय होगा वैसे आगे बढ़। Thank you very much, Sunil ji. Now I would like to request our chair, Professor Jagdish Kumar ji. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar to all the participants. Congratulations to all the authors who have contributed to this very important book, and it has come in the right time. Because when we talk about Atmanirbhar Bharat, there are also people who are trying to create confusion about this very concept of Atmanirbhar Bharat without really understanding the real intent and the real objective of this Atmanirbhar Bharat concept. So therefore, I would like to spend a few minutes to look at the concept of Atmanirbhar Bharat in a comprehensive way. Sunil ji mentioned that right from the day we got our independence, we had this idea of making our country strong and self-reliant. But somewhere we failed. If you look at countries like Japan, which was reduced to ashes after Second World War, in few decades they rose to become a technology. And following in the same steps, many countries such as South Korea, Taiwan, Singapore, they have become self-reliant. And mind you, these are countries which do not have their own natural resources, but still they have become self-reliant. They have become world's leading technological manufacturers, entrepreneurs. So we need to go back a little bit to the early days of our independence and see how we try to develop and build our economic models, the development models. If you look into the Nehruvian era, in those days the public sector played a crucial role in developing the domestic industrial capacity, especially the heavy industries. And in those days, foreign investments were completely shunned, and there were high tariff walls which insulated the domestic industry from any kind of foreign competition. There was a kind of license quota Raj which thrived across the country, seriously affecting the industrial growth. And because our local industry is insulated from the foreign competition, and because a huge domestic consumer market was handed over to our local industries on a platter, if you look at the industrial growth in our country in 1970s and 80s, India did not modernize our industries at all. They did not put any effort in climbing up the technological ladder. As a result, we now know that India completely missed out on the third industrial revolution, which comprised of manufacturing electronic goods, microprocessors, personal computers, mobile phones, and the entire global value chain we lost during those decades. So now when we are talking about Atmanirbhar Bharat, some people say that it is closing our economy to others. But we need to look at the approach that we are using to build this Atmanirbhar Bharat. We have learnt lessons from the 60s, 70s and 80s, the way we tried to build and failed. Today, when you look at the policies that are being implemented in our country, you see that the foreign investment is going up in our country today. India has become one of the most sought after destinations for foreign investment in our country. The foreign companies which are
once thrived in China, they are trying to relocate to India. How did that happen? And if you look at another very significant divergence from the earlier models that the Nehruvian era followed, today the commitment to sell the government stake in public sector companies is very high, be it LIC, be it Indian Airlines. The public-private partnership is high on our agenda today. If you look at the three important sectors which are contributing to the growth of GDP, we know that today services play a major role, but no country in the world where the GDP is decided by the service sector has really become a technological leader. Today our GDP, 54% of our GDP is driven by service sector. This is followed by manufacturing to the extent of about 29%, and agriculture contributes only about 15.87% to our GDP growth, whereas agriculture is the one which provides the highest number of jobs, employment to the people in the country. So therefore, if we want to build a strong edifice of self-reliant India, we need to make sure that our industrial sector and the agriculture sector are strengthened. Today our Indian economy is about $3 trillion, and unless we strengthen these two sectors through our efforts of self-reliant India, it will not be very easy for us to cross the barrier of $5 trillion economy that we have put as a goal for ourselves. Therefore, when we talk about Atmanirbhar Bharat, it is all about helping the industrial growth. It is about skill development. It is about infrastructure development and the schemes to increase the farmers' income. India today has the golden opportunity to develop self-reliant capabilities, for example, in electric vehicles, in fuel cell vehicles, in electric storage systems, solar cell modules, aircrafts, including the UAVs. Recently, the government of India has released a new policy on the drone technology, inviting private participation, inviting the medium scale industries to participate in the manufacturing of UAVs, artificial intelligence, robotics, automation. There are many areas where India has the strength to build itself as a world leader in these areas. Biotech and pharma are other areas which are very well within our reach. If you want to boost our confidence, because that is the basic building block, self-confidence is the basic building block for us if we want to build a self-reliant India. And how can we boost India's self-confidence? Well, we need to look at our own strengths. We need to look at our own assets that we have. Take for example the population. India has the largest number of youth in the country, and that is our biggest asset which no other country has. Take for example sunshine. Almost 95% of India throughout the year gets good sunshine, and this is an opportunity for us to build solar energy based electricity. Take the motor industry. India leads the automobile industry in the world today, be it the spare parts, be it the automobiles. India has become a leader internationally. India, another biggest advantage India has is our parliamentary constitutional system that we have. We need to be rightly proud of the constitutional system that we have in India. It is remarkable that among the post-colonial constitutions, India has the longest longevity in terms of the thriving democracy and the constitutional principles that we follow in our country. This should be the pride of our country. As a country, we recognize that the future of India is decided by our farmers, our entrepreneurs, our engineers, the artisans,
and the risk takers. And what we are doing today to build the self-reliant India is to strengthen the hands of people who are working in different domains. And that is the reason why, as Sunilji has rightly mentioned, educational institutes have to play a proactive role. Educational institutes should take the first step instead of waiting for somebody to nudge us, you do this, you do that. We need to take the first step, and we need to actively participate in providing inputs to the government in terms of formulation of the policies. And in that context, I think the effort put by all these young authors in bringing out this book will go a long way. I'm sure the policy makers in the government will purchase this book and will read it seriously, so that they will get some inputs while formulating the policies. So with those comments, I would like to congratulate all the young authors. It's not easy to put all those articles together and to bring out such a beautiful book, and I wish that these authors will continue to contribute effectively in future too. So with those comments, I would like to conclude here, and thank you for giving me this opportunity to share some of my thoughts. Thank you very much, sir. Thank you very much for these enlightening words on आत्मनिर्भरता. यहाँ पे कुछ सवाल आए हुए हैं, जो मैं कुछ सेट में सवाल लूंगा. 7 बजे ही सुनील जी की अगली मीटिंग भी है, वीसी सर की भी, तो 7 बजे तक ये कार्यक्रम हमें कंप्लीट करना है. तो अगले 15 मिनट हम लोग सवाल पे लेंगे. पहले सेट ऑफ सवाल, सुनील जी, जो आत्मनिर्भरता में जो आत्म का भाव है, इससे जुड़े 2 सवाल मेरे पास आए हैं कि इस आत्म को कैसे स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें. इसके ऊपर थोड़ा 2-3 सवाल थे, मैंने एक साथ क्लब कर दिया. आत्म के ऊपर है आत्मनिर्भरता में, आत्मा का भाव मजबूत कैसे होगा? आपके सामने तो पढ़ दीजिए ना क्वेश्चन, सो दैट आई कैन. नहीं, प्राइवेटली भी आए हुए हैं जी मेरे पास, ये प्राइवेट सब लोग पर्सनली भी भेजा हुआ है जी, मैं क्लब करके बोल रहा हूँ. ठीक है. नहीं, 2 चीजें हैं. मैं मतलब दोबारा एक बात में, उस बात को मैंने बोला है, दोबारा उस बात को बोलता हूँ एक बार. ऐसा है कि 2 चीजों से हमारा मजबूती होगी. एक तो हमारे पोटेंशियल्स जो है, जो भी हमारे लोगों की क्षमताएं हैं, जो भी चीजें लोगों के पास है, तो एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है. एक तो उन चीजों को रिकॉग्नाइज करना, पहली बात तो, कि ये पोटेंशियल्स हमारे पास है. अगर हमारे पास लोग छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं जिसका उपयोग है, जैसे मैं अभी आपको एक छोटी चीज बताता हूँ. मैं हमारे नागपुर के विदर्भ एरिया में मेलघाट करके ट्राइबल एरिया है, वहाँ तो एक समय था कि जहाँ स्टार्वेशन होता था, बहुत ही बेकार परिस्थिति थी. लेकिन वहाँ कई सारे सरकार की योजनाएं थी और कई सारे जो सोशल वर्कर्स है, मेरे मित्र ही है, उन्होंने वहाँ काम शुरू किया. 10 साल में उन्होंने एक ही काम किया, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की. उनको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स से जोड़कर उनको ट्रेनिंग दिया. अब वो बाम्बू से बहुत अच्छी वस्तुएं बनाते हैं और उसी के आधार पर उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स बनाते, फर्नीचर्स बनाते, बहुत सारी चीजें बनाते. और नागपुर के जो एंटरप्राइजिंग जो लोग हैं, उनसे उनको कनेक्ट किया. और आज मैं देख रहा हूं कि उस एरिया में अब पिछले 7-8 सालों से कोई ऐसा समाचार नहीं आता है, और वही लोग हैं, लोग वही हैं, वहीं रहते हैं. उनके पहले से उनके पास कैपेसिटीज थी, और लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे पास ये कैपेसिटीज है. वो तो हेल्पलेस फील करते थे. बाकी लोगों को लगता था कि ये तो डिपेंड है सरकार के टैक्स मनी पर, इनके लिए तो बस वेलफेयर ही करना है सरकार को. नो, नाउ दे आर टैक्स पेयर्स. दैट पॉपुलेशन इज कन्वर्टेड इनटू दैट. अब उनकी जो फैसिलिटीज है, वहां जो अधिकारी जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें बदल सकती है. मैंने ऐसा बदलाव बहुत सारी चीजों पर देखा. सरकार की पॉलिसीज अगर उस तरीके से बनती है और सरकार के पॉलिसीज के साथ साथ लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते हैं, एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, और फिर तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे संभव है. ये बात किसी भी एरिया में है, मतलब जितने सेक्टर का आप नाम लेंगे, हर सेक्टर में ऐसी पॉसिबिलिटीज है. मतलब
एक सवाल यहाँ पे चंदन उपाध्याय जी बीएचयू से, अनिल कुमार सिंह जी का, करण पलसानिया और वर्धा संभूज का भी है। युवाओं और छात्रों में कैसे इस प्रकार से इसको आगे कैसे ले जाना चाहिए आत्मनिर्भरता के भाव को। और एंड Chandan Kumar also pointed out for Professor Jagdish Kumar that how in this phase of fourth industrial revolution in educational institutions how can we implement this idea of आत्मनिर्भरता, या आत्मनिर्भरता का विचार हम अपने शिक्षा संस्थानों में कैसे अच्छे से अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। आप दोनों लोग इस पे जवाब। जी सर पहले बोलेंगे। जी जगदीश। Right. This is also related to the previous question about Atmanirbharta. It has to start within ourselves first. Unless we are confident, we cannot change the world around us. And we also have to remember that whatever we do in our life and whatever materials and tools that we use for our living, whatever we study, whatever social, economic and cultural structures that we build, they are all a result of a complex set of causes, ideas and practices. And therefore, if we want to build self-confidence within ourselves, knowing about the contributions and lives of our predecessors is also important. And this is something that we have neglected during last 50 to 60 years in our country, because it provides us an opportunity for us to know about how our lived experiences are different from that of our predecessors, but at the same time how similar our goals and values are in building happy and healthy human societies. Therefore, I would say that right from childhood, our kids should know whatever our accomplishments. It is not just only to glorify, it is to know that our base is very, very strong, and that provides us a lot of confidence, because our future can only be built on a strong present and a strong past. And for some reason, I think our kids were completely isolated from knowing about the strengths of our own past. And that is what the national education policy is trying to rectify. Providing a comprehensive fact-based history to our students is also very, very important. I'll give you one simple example. Today, the entire semiconductor industry integrated circuit revolution is based on one simple concept. That is, in every electronic device, you have what is known as a rectifying junction. It conducts only in one direction. I often ask my students, tell me in which country it was invented, this concept. Somebody will say Germany, somebody will say USA, somebody will say some other country. But hardly our kids know that this concept was invented and was patented by Jagdish Chandra Bose in 1903. So we need to know our past, and that is our the first step. And then presently, what are our strengths? As I mentioned earlier, the thriving democracy, the youth that we have, and the way our educational system is now trying to improve itself. These are all strengths that we need to remind ourselves if you want to become self-confident. And once you become self-confident, I'm sure the path is open to build our country to become self-reliant. Right. सुनील जी, आप इस पे कहना चाहेंगे कुछ इस विषय पे, शिक्षा संस्थानों में आत्मनिर्भरता? वैसे तो बात आ गई है। मुझे लगता है कि बस अभी जो 2 पॉइंट है हमारे पास, एक तो अभी एनईपी में तो अगले पीढ़ी को शायद वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बिल्कुल फ्रॉम चाइल्डहुड वो इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ निकलेंगे। उसमें जो इंटीग्रेशन किया गया है अपने सेल्फ नॉलेज के बारे में, स्किल्स के बारे में, और जो भी एक मल्टी डायमेंशनल जो भी हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें थी उनको भी रिकॉग्नाइज किया है, तो ये ओपन अप करती है आपके बहुत सारे नए प्रकार के एंटरप्राइजिंग को। अदरवाइज हमने चीजों को बिल्कुल लिमिट कर दिया था, बहुत सारी चीजों को हमने एक्सक्लूड कर दिया था, जो हमारे पास है उन सब चीजों को। अभी उन सब जो हम
कई चीजों को हमने अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर में डाल दिया था, मतलब नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, इस तरीके से कर दिया था। अभी ये पॉलिसी एजुकेशन में ही उनको फॉर्मल एजुकेशन में बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर रही है कि आप इसमें से कोई भी चीज अगर सीखते हो या करना चाहते हो या जानते हो तो यस, इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग एंड यू शुड डू इट। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ जो कई कामों के बारे में डिग्निटी नहीं था या उसको एक सोसाइटी में रिकॉग्निशन नहीं था, ये इस पॉलिसी दे रही है। तो मुझे लगता है पॉलिसी से नई पीढ़ी तो बनेगी, लेकिन हम इन सब चीजों के बारे में एक इस तरह का माहौल बनना बहुत जरूरी है। हमारे यंगस्टर्स के अंदर ये चीज लाना यूनिवर्सिटी में बहुत जरूरी है कि ऐसे छोटे छोटे काम करते भी दुनिया में वंडर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अभी जो छोटी सी चीज है, मतलब कोई अगर मतलब केवल दूध से भी कोई पदार्थ फूड प्रोडक्ट्स बनाता है, वो भी करोड़ों रुपए का बिजनेस है पूरी दुनिया के लिए। अगर छोटी सी कोई चीज मिट्टी से भी कोई चीज बनाता है, अभी देखिए पूरी दुनिया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जा रही है, हर्बल जा रही है, ऑर्गेनिक चीजों पर जा रही है। तो जो छोटी छोटी चीजें, अभी मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ। अभी यूट्यूब पर एक व्यक्ति मुझे मिला, वो केवल ये बता रहा है कि दूध कैसे निकालते हैं, गाय को कैसे रखते हैं, उससे दूध कैसे, दही कैसे बनाते हैं, दही से फिर छाछ कैसे बनाते हैं, छाछ से घी कैसे बनाते हैं। और उसको ये जो देखने के लिए बहुत लोग हैं, और उसका यूट्यूब मोनेटाइजेशन कई रुपयों में जा रहा है, मतलब उसकी आमदनी बन गई है ये। तो ऐसा नहीं कि अब उस व्यक्ति को न भाषा ठीक से आती है, न बोलना, एक्सप्लेन करना, लेकिन बस उसने किसी ने उसको इतना सिखा दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस हमारे कई बार यूनिवर्सिटीज में लूज हो जाता है। वो एक डिग्री लेता है लेकिन ये कॉन्फिडेंस ही कमी हो जाती है। तो जो उसके पास है उसको कील नहीं करना, उसको प्रोत्साहित करना, और उसी पर बहुत सारी चीज, एक व्यक्ति एक डिग्री लेकर लाइन में खड़ा ना रहे, तो वो अपने 10 स्किल्स खड़े लेकर लाइन में खड़ा रहेगा कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि आत्मविश्वास तैयार करता है व्यक्ति के अंदर कि, और फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है, कि जिसके पास आत्मविश्वास होता है वो क्रिएटिव भी होता है। तो बहुत सारी चीजें बन सकती है। जी, एक दो तीन मित्रों का सवाल है प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को लेके, उत्पादकता जो हमारे मानव संसाधन की है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान को लेके हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान है, इसमें जो प्रयास हो रहे हैं उससे आत्मनिर्भरता को कितना बल मिलेगा और कितना हम R&D पे खर्चा कर पा रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी अपने ह्यूमन रिसोर्स को, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक अभी वर्ड इस्तेमाल होता था, अभी डेमोग्राफिक डिजास्टर भी शब्द इस्तेमाल होने लगा है, तो इसके ऊपर भी चर्चा सर इस पर बताएंगे, लेकिन मैं तो एक ही लाइन आपको बोलूंगा कि मुझे लगता है कि आप जो आज एक सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं चाहूंगा कि आपके एक एक सवाल में एक एक रिसर्च का पोटेंशियल है और एक एक पॉलिसी इंटरवेंशन है। रिसर्च पर तो चल रहा है कि अभी NRF बनाएंगे, R&D पे खर्चा करेंगे, कंपनीज भी बोल रही, बहुत सारे बाहर के जो हमारे NRIs या हमारे लोग हैं वो यहाँ रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ आगे, मतलब चीजें बहुत सारी आ रही है। अब एग्जैक्टली उसको सिंक्रोनाइज कैसे करना, इस पर मुझे लगता है कि ये कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप लोग करें या आप लोग बहुत लोगों को प्रेरित करें। तो मुझे लगता है ये जितना फास्ट होगा उतने रिक्वायर्ड जो पॉलिसी इंटरवेंशन है या चेंजेस है वो जल्दी से हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, प्रोफेसर जगदीश कुमार जी। No, I agree with what Sunil ji has mentioned just now. But going a step forward, I think today our country has become third best country in terms of the ecosystem for entrepreneurship. And that is because of the policies that we have implemented and also because of the inner strengths that we have. That is point one. And point two, now there is increasingly awareness in the educational institutes that it's not just enough to do research and publish it somewhere. We need to move from basic research to translational research so that our research can be converted into products, and then the universities, many universities are now opening their own startup companies on their own campuses, and now we need to do that on a larger scale. It has to become a movement across the country, but that is possible only
if we strengthen the base of our research structure in the country, because we have some outstanding institutes at a national level which are known internationally. But if you look at the research output in the universities, hundreds of universities and other colleges across the country, that is not up to the mark. And that is where we need to do a lot of work. And the best institutes in the country should handhold with those universities and colleges and improve the research ecosystem in those universities. And that is the only way we can convert basic research into translational research. And I am sure in the coming years that is going to happen. लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, जो खेती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 65% आबादी अभी भी हमारी गांवों में रह रही है और जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। गांव पहले एक यूनिट होते थे, एक सेल्फ रिलायंट यूनिट होते थे, तो गांव अपने आप में एक जो पीछे की सत्ता है, एज प्रोफेसर जगदीश कुमार वाज मेंशनिंग अबाउट नेहरू एरिया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड ऑल, तो वो पूरा एक बोझ की तरह दिखने लगा है। जीडीपी में योगदान कम है। तो 3 सवाल इससे जुड़े हैं। तो हम अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे कैसे सेल्फ रिलायंट बनाएं, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं लोग। Can I answer? Yes, yes. Right, yes. right. You see, if you look at 18th century India, India was the largest manufacturer of zinc, iron. There were iron kilns almost in every village. They were producing the iron locally for themselves. But unfortunately, we started following this highly centralized Western model of manufacturing. Everything is manufactured in one place, depriving the rest of the country, and then they had to be transported, adding to the cost and other things. But the best model is decentralization. Today people have recognized that. One of the examples I can give is Sridhar Vembu. Sridhar Vembu is the CEO of Zoho company, and he has set up his software centers in dozens of villages and in small towns. And that is how you need to decentralize our industries too, so that the local people can be employed in those industries. They can be trained and they can be employed, so that they will get employment and also they will contribute to the industrial and economic growth of our country. And this is something that we need to very seriously look at. थैंक यू। सुनील जी, आपका कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स? नहीं, मेरा एक ही चीज है जो अभी चर्चा हो रही थी। देखिए, गांव कोई अलग से आत्मनिर्भर हो जाएंगे और शहर आत्मनिर्भर अलग से हो जाएंगे, ऐसा आइडिया जो अगर किसी का है तो वो सही नहीं है। मतलब ये मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों का इंटीग्रेटेड ही होगा। ये इंटरडिपेंडेंसी है, और कुछ चीजें होगी जो गांव में बनेगी और चीजें यहाँ आएगी, कुछ चीज सर्विसेज होगी जो शहरों में होगी। तो ये चीजें बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से ही सोचने से होगा। इसलिए ये एक मुझे बात लगती है। बाकी और इसके बहुत सारे डिटेल्स हो सकते हैं, और बाकी बहुत सारे विषयों पर आज क्योंकि हमारे बीच में जगदीश सर है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कई चीज़ों को एड्रेस किया है, और मुझे लगता है कि उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इस दृष्टि से है कि वो कई लोगों को इस दृष्टि से गाइड कर रहे हैं। एक बात मैं आखिरी में इतनी बात जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि हर एक के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है। मुझे लगता है कि जैसे शुरू में सर कह रहे थे कि हम लोगों ने जो मतलब थर्ड जनरेशन या अभी जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको हम लोगों ने मिस किया। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्योंकि हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और अब हम लोगों के पास इतना करते करते जो भी मेहनत हुआ, कुछ ना कुछ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। एक लार्जेस्ट और वेरी सक्सेस स्टेबल ऐसी हमारी डेमोक्रेसी है हमारे पास। मतलब हम लोग कोई अफगानिस्तान में नहीं बैठे, पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं कि जहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ है।
या ऐसे देश में भी अभी देखो आप कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब एक तरफा चीजें चल रही है, ऐसा भी नहीं है, तो वी हैव वेरी गुड सिचुएशन अब। तो इसलिए, और एक तरफ यंग पॉपुलेशन है, तीसरी बात है कि हमारे देश में जो भी प्रयास हुए, जितने भी मतलब राष्ट्रीय तरह से विचार करने का जो भी प्रयास चलते रहे, उसका प्रभाव ये हुआ है कि पूरे देश में एक पॉजिटिविटी आई है। मतलब जहाँ लोगों को लगता था कि नहीं भैया हम लोग तो कभी सुधर नहीं सकते, अब सब लोगों को लग रहा है कि नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर भी है। और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सिचुएशन है हमारे लिए, और इस सिचुएशन में हर एक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मतलब एकदम सामान्य से हर जहां जो खड़ा है उसको अपना अपना रोल जितनी मेहनत से निभाएंगे तो मुझे लगता है तभी देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं कि जो एनालिसिस तो बहुत लोग करते हैं पॉलिसीज का और चीजों का, और आजकल बहुत सारे कुछ विद्वानों का तो ये काम ही है कि जो निगेटिव एनालिसिस करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी हम आज़ादी के 75 ईयर्स को मना रहे हैं, तो उनको याद करना चाहिए कि जो आज़ादी के दीवाने थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, उन्होंने ये सोचा देश का क्या होगा, देशवासियों का क्या होगा। और उन्होंने, उनके पास तो बहुत सारी चीजें थी, आर्ट्स बहुत थे और हमारी कमियां भी बहुत थी, लेकिन उन्होंने उन कमियों को समझकर उसका भी सॉल्यूशन निकालने के लिए अपनी जिम्मेदारी ली और वो संघर्ष में कूद पड़े। मुझे लगता है ये समय ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारे पास कुछ कमियां हैं, उनको हमें दूर करना है, लेकिन उनको दूसरों से केवल हम कंपैरिजन करके अपनी कमियों को क्रिटिसाइज करके नहीं होगा। सो व्हेनेवर वी क्रिटिसाइज वी शुड कम विद द सॉल्यूशन। ये मुझे लगता है हमारा जो एटीट्यूड है कि यस यू कैन क्रिटिसाइज एनीथिंग बट यू शुड ऑलवेज पुट योर एफर्ट्स फॉर द सॉल्यूशन। ये मुझे लगता है आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही आत्मनिर्भरता की चाबी है, वही आत्मनिर्भरता का रास्ता है। ऐसा सोचने वाला समाज ही आत्मनिर्भर बनता है और आत्मविश्वास के साथ पीढ़ियों तक चलता है। तो मुझे लगता है अब हम लोग जो तैयारी करेंगे वो 2, 4, 5 साल की नहीं, अगले 1000 साल हमारा गोल्डन इरा रहना चाहिए। अगर हजारों वर्ष तक हमारा गोल्डन इरा था इकोनॉमी का, देश की समृद्धि का, देश के अच्छे वैल्यूज का, तो आगे का हम लोगों को अब हमारे अंदर वो स्पिरिट सबको लेके चलना चाहिए। डोंट, मतलब ये बक्स हमें कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। हम लोगों को उस तरीके से सोचने की मुझे लगता है जरूरत है, उस लेवल के कॉन्फिडेंस से अब भारत को बात करने की जरूरत है, और मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ। नमस्ते जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो भारत में जो इंटीग्रल अप्रोच है यही भारत के आत्मबोध को जागृत रखता है। और आपको मैं बताऊं, जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने मिस किया और जो फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे जो इनिशियल पेपर्स आए हैं वो ह्यूमन अप्रोच के और मानवीय संबंधों के बारे में ही बात कह रहे हैं, और जिस तरह आपने भी इंगित करने की कोशिश की हम सब लोगों को। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर शिव प्रकाश सर को एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। प्रोफेसर शिव प्रकाश सर। धन्यवाद स्वदेश जी। जिस सत्र को प्रोफेसर जगदीश कुमार जी चेयर कर रहे हों और उसमें मुख्य वक्ता माननीय सुनील जी हों, तो मुझे लगता है कि 1 घंटा बहुत कम होता है। आपको सुनते हुए लग ही नहीं रहा था कि ये बंद होना चाहिए, लेकिन समय की अपनी सीमा रहती है और आप लोगों की प्रतिबद्धता है, किसी और बैठक में जाना है। तो मैं कुछ बातें आप ही के शब्दों को सामने रखते हुए, कि माननीय सुनील जी ने बताया कि किस तरह से ये आत्मनिर्भरता का विषय हमारी एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, हमारी पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, और किस तरह से हम इसको अपने हजारों वर्षों के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी विरासत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रिच रही है। आज आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, और मैं आपको बताऊं कि ये जो पुस्तक है ये वास्तव में हैंड होल्डिंग का ही नतीजा है। एकेडमिक्स फॉर नेशन पे जो हम लोगों ने इंटर्नशिप प्रोग्राम किए, उस प्रोग्राम का नतीजा है,
और हम सब ने कोशिश की कि जो हमारे नए रिसर्चर्स हैं जिनको आगे पीएचडी करनी है या फर्दर रिसर्च में जाना है, उनका राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनको कैसे हम जो कुछ सालों से विश्वविद्यालयों में पढ़ा लिखा रहे हैं कैसे उनका सहयोग कर सकें। तो उन सभी विद्यार्थियों को हमने कोशिश की आगे बढ़ाने की, और उसका ये परिणाम है कि एक सुंदर सी किताब वंदना जी के नेतृत्व में और डॉक्टर स्वदेश के नेतृत्व में आई, और आज आप दोनों ने उस किताब को लोकार्पित किया और उन दोनों का हौसला बढ़ाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। और माननीय जगदीश जी का तो क्या कहना है, when he was speaking it was nothing like, something was coming like anything, by giving the example of Japan, South Korea and other countries, how they developed themselves, how they became self-reliant and where we miss our bus. That was amazing. तो बहुत साधारण शब्दों में बहुत मजबूती के साथ हम सबको प्रेरित करने वाले शब्द आपने हम सबके बीच रखे, हम सबका मार्गदर्शन किया, और बहुत खूबसूरती से how 3 factors of GDP is among us, how strong points are enumerated with us. ये जो एस्पेक्ट्स आपने रखे उसने हमको ऊर्जा से भरा है, और जो हमारे तमाम रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि काश हम भी इंटर्नशिप करते और हमको भी मौका मिलता। तो हम एकेडमिक्स फॉर नेशन पर जल्दी एक नए इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ आएंगे और सभी साथियों को शामिल करेंगे। प्रोफेसर जगदीश कुमार जी का बहुत बहुत साधुवाद हम सबको मोटिवेट करने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। और किसी भी कार्यक्रम की शोभा हमारे सहभागी लोग होते हैं। हम अपने सहभागियों को समय समय पर बुलाते हैं और आप सभी हमारा मान रखते हैं। तो आप सब ने हम सबका मान रखा, सवाल पूछे, कुछ सवाल निसंदेह हम नहीं ले पाए होंगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे ही अपना सहयोग हम सबको देते रहें। स्वदेश जी और वंदना जी को बधाई देते हुए एक बार पुनः आज के चेयर प्रोफेसर जगदीश कुमार जी का और आज के मुख्य वक्ता हम सबके मार्गदर्शक माननीय सुनील आम्बेकर जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वदेश जी। Thank you, sir. Thank you everyone for joining.